মথি তার 6 অধ্যায়ের 5 থেকে 7 পদ। मत्ती 6 अध्याय 5 से 7 पद। আর তুমি প্রার্থনা করার সময় পরজাতীয় মানে অবিশ্বাসীদের মতো অর্থহীন পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে বাকবাহুল্যের জন্যই তার প্রার্থনার উত্তর পাবে। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। बक मत करो। हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करो जो लोग बाइबल लेकर, बहुत बोलने से लोग सोचता है जितना 1 घंटा बोलेंगे तो प्रार्थना, 2 घंटा बोलेंगे, 2 घंटा प्रार्थना करना गलत नहीं है, प्रार्थना 2 घंटा करा बोलें, किंतु যদি আপনার প্রার্থনা বলে ও আমি যদি 1 ঘন্টা 2-5 মিনিট করে এফেক্টিভ না, কিন্তু যদি 1 ঘন্টা যদি বসে যাই তাহলে সেটা শুনবে, এটা নয়। ওকে, তো ঈশ্বর কি বলছে, বেশি তারা ভাবে কি, কপটিরা কি ভাবে যে তারা বেশি কথা বলার জন্য তাদের প্রার্থনা শোনা হবে। कपटी लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा बकबक करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अब परमेश्वर क्या बोला, ईश्वर की बोले, हिब्रू 11 अध्याय 6 पद, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद। লেখা কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি তার সান্নিধ্যে আছে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন, আর যারা আন্তরিকভাবে তার অন্বেষণ করে তিনি তাদের পুরস্কার দেন। लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। তো বিশ্বাস ছাড়া আপনার প্রার্থনার উত্তর কোনোদিনও আসবে না। विश्वास के बिना आपके प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं आएगा। প্রভু যিশু ক্লিয়ারলি, যদি দুটো বাক্যকে আমরা দেখি, প্রভু যিশু ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এই জিনিসটা যে আপনার প্রার্থনা এই জন্য শোনাবে না যে আপনি অনেক অনেক শব্দকে ব্যবহার করছেন। इन दोनों वचन में यीशु ने हमें समझा दिया है कि हमारे प्रार्थना जो है ज़्यादा बोलने के द्वारा नहीं आती है। It's not long prayers but faith in prayer that pleases God. এটা বড় প্রার্থনা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের প্রার্থনা যা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করে। बड़ी प्रार्थना नहीं बल्कि विश्वास की प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं। আপনি 2 ঘন্টা প্রার্থনা করছেন কিন্তু প্রার্থনার মধ্যে কোনো বাক্য নেই, বাক্য অনুযায়ী আপনি প্রার্থনার মধ্যে খালি নেগেটিভ কথা বলছেন, আপনি ভাবছেন আমি 2 ঘন্টা প্রার্থনা হচ্ছে ও ঈশ্বর শুনে নিচ্ছে, ঈশ্বর একটা কথাও শুনেনি। आप 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी वचन नहीं बल्कि हर एक नेगेटिव बातें उसमें हुई है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। ওকে, তো আজ আমরা বিশ্বাসের ব্যাপারে দেখব, আগে বাড়বো বিশ্বাসের প্রার্থনার ব্যাপারে। आज हम विश्वास की प्रार्थना के विषय में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। তো অনেক মানুষ এটা মনে করে যে बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना বিশ্বাসকে কার্যকরী করে তোলে, कि प्रार्थना विश्वास को कार्यकारी बनाता है, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা উল্টো, বিশ্বাস প্রার্থনাকে কার্যকরী করে তোলে। पर इसके ये बिल्कुल ही विपरीत है कि विश्वास ही प्रार्थना को कार्यकारी बनाता है। সবাই অনেকে ভাবে প্রার্থনা বেশি করলে বিশ্বাস বাড়বে। सब ये सोचते हैं कि प्रार्थना ज़्यादा करने से विश्वास बढ़ता है। বিশ্বাস যদি বেশ ভালো থাকে, বিশ্বাস যদি নিজের হৃদয়ের মধ্যে রেখেছি, যদি ডেভেলপ করেছি, তো প্রার্থনা কার্যকরী হবে, প্রার্থনা উত্তর পাওয়া যাবে। परंतु अगर विश्वास को अपने हृदय में हम लोग अगर उपजाते हैं तो प्रार्थना जरूर कार्यकारी होता है। তাই জন্য অনেক ব্যক্তি প্রার্থনা করে, অনেক বিশ্বাসী, বেশিরভাগ বিশ্বাসী প্রার্থনা করে, बहुत से विश्वासी प्रार्थना करते हैं, কিন্তু কিছু জন ফলকে দেখতে পায়। पर बहुत से कम ही है जो फल को देख पाते हैं। কারণ কিছু জন জানে বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের সাথে কিভাবে পার্টনারশিপ করা যেতে পারে। क्योंकि कुछ ही लोग जानते हैं कि विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ कैसे संपर्क को हम कर सकते हैं। তো মনে রাখবেন, ঈশ্বরের সামর্থ্য প্রার্থনার বিশ্বাসের দ্বারা রিলিজ হয়। पर याद रखिएगा परमेश्वर का सामर्थ्य विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ही आपके सामने आती है। তো আপনার প্রার্থনা কতটা এফেক্টিভ হবে বা কতটা সামর্থ্যশালী হবে, आपकी प्रार्थना कितना प्रभावशाली होगा,
এটা ডিপেন্ড করে আপনার প্রার্থনায় কত বাক্যকে আপনি ইউজ করছেন। ये निर्भर करता है कि आप अपने प्रार्थना में कितना वचन को यूज करते हैं। প্রার্থনা অনেক বিশ্বাসী করে, একটা প্রবলেম, এটা দুঃখের বিষয়। এটা प्रार्थना बहुत से विश्वासी करते हैं কে বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করে কিন্তু তার প্রার্থনা শুরু করে অবিশ্বাসের জায়গা থেকে। वो लोग विश्वासी लोग प्रार्थना तो शुरू करते हैं लेकिन वो शुरू यहाँ से करते हैं जहाँ अविश्वासी को विषय है। अविश्वास का जगह से क्या करता है, वो लोग प्रार्थना को शुरू करते हैं। क्या है उदाहरण, प्रभु मेरे जीवन में मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे जीवन में मुझे कोई समझ नहीं पाता, प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ों से, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे जीवन में, मेरे जीवन से कुछ नहीं हो सकता, मैं नालायक हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं, प्रभु अगर तू कार्य कर, मैं और इस जीना नहीं चाहता हूँ। बहुत से लोग का प्रार्थना है इमोशंस। ওকে, অনেকজনের প্রার্থনা খালি অনুভূতি, যেটা তারা ফিল করছে সেটা তারা প্রার্থনায় বলে। बहुत से लोगों का प्रार्थना ये अनुभव के अनुसार होता है कि जो वो महसूस कर रहे हैं उसी के अनुसार वो करते हैं। বিশ্বাসের প্রার্থনা কি? विश्वास की प्रार्थना क्या है? তারা বলে প্রভু আমি জানি লোকে কি বলে আমি জানি না, তোমার বাক্য বলে আমাকে যদি লোকে ছেড়েও দেয় তোমার বাক্য বলে তুমি না কোনদিন ছাড়বে না কোনদিন পরিত্যাগ করবে। विश्वास की प्रार्थना यह है कि लोग अगर मुझे छोड़ भी दे पर परमेश्वर आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। প্রভু তোমার বাক্য বলে তুমি আমাকে তোমার প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছো। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने अपने स्वरूप में मुझे बनाया है। আমাকে লোকে বলতে পারে তোর দ্বারা কিছু হবে না, কিন্তু আমি জানি ঈশ্বর তুমি আমাকে বেছেছো আর আমার দ্বারা হবে। हमें लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर हमें चुना है तो हमारे द्वारा जरूर होगा। দুজনেই প্রার্থনা করছে কিন্তু প্রার্থনার বলা দুজনেরই আলাদা, প্রার্থনা ভাবনা চিন্তা দুজনেরই আলাদা। दोनों ही प्रार्थना करें लेकिन उसमें बोलने का तरीका अलग है और दोनों की चिंताएं अलग है। তো মনে রাখবেন যদি আপনি প্রার্থনা অবিশ্বাসের জায়গাতে করেন আপনার জীবনে ফ্রাস্ট্রেশন আসবে। अगर आप प्रार्थना अविश्वासी की जगह से करेंगे तो आपके 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 पास दुविधाएं आएंगी, বিরক্তিতা আসবে, आप इरिटेट हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ऐसे विश्वासी है जो प्रार्थना तो कर रहे हैं, उसका पास्टर अच्छा नहीं लग रहा है, अरे अच्छा नहीं लग रहा, उन लोग के लिए एक बोझ है, एक कार्य है। पर प्रार्थना ये नहीं है। प्रार्थना अगर आप ये सोच के लोग अरे मुझे इतना देता, जैसे मैं जब स्टार्टिंग में प्रभु को जाना था, ओके যখন আমি প্রথম ঈশ্বরকে জেনেছিলাম, जब मैंने पहले प्रभु को जाना था, এবার আমি শুনেছিলাম আমার একটা বন্ধু যে ঈশ্বরকে অনেক দিন থেকে জানে, और मैं सुना था कि मेरा एक दोस्त है जो परमेश्वर को बहुत दिनों से जानता সে है, 1 ঘন্টা প্রার্থনা করে। वो 1 घंटा प्रार्थना करता है। তো আমি গেছিলাম ছাদের উপর, আমি আমাকে 1 ঘন্টা আমাকে প্রার্থনা করতে হবে। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी 1 घंटा प्रार्थना करना আর होगा। আমি শুরু করেছি हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु তুমি কার্য করো, प्रभु प्रभु तू कार्य कर, प्रभु तू धन्यवाद देते, प्रभु तेरे खत्म होने का देखिए 5 मिनट ही खत्म हुआ। उसके बाद 5 मिनट ओके ठीक है आराधना करते, थोड़ा आराधना करते उसके बाद फिर से प्रभु फिर से वही प्रार्थना रिपीट है। उसके बाद देखा अरे मुश्किल से 20 मिनट, उसके बाद अरे यार नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या, अरे मेरे से कुछ नहीं, मैं 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। क्या है ये, रिलीजन है, धर्म है, এটা ধর্ম। ধর্ম এরকম শেখায়। ফারেসিরা অনেকবার প্রার্থনা করছিল কিন্তু তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল না। फरीसी लोग बहुत ही समय तक प्रार्थना करते थे लेकिन उसके हृदय में जो है विश्वास नहीं था। তো আপনার প্রার্থনায় যদি বিশ্বাস না থাকে, প্রার্থনা একটা মৃত ধার্মিক কার্য। अगर आपके भी प्रार्थना में अगर विश्वास ना रहेगा तो वो प्रार्थना एक धार्मिक मरा हुआ चीज होगा। हालेलुया। তো আজ প্রার্থনা শুরু বলার আগে আমি এটা বলতে চাই কি প্রার্থনা নয়। प्रार्थना के विषय में बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि क्या प्रार्थना नहीं है। মথি তার 6 অধ্যায়ের 5 থেকে 7 পদ, मत्ती 6 अध्याय 5 से 7 पद। আর তুমি প্রার্থনা করার সময় পরজাতীয় মানে অবিশ্বাসীদের মতো অর্থহীন পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে বাকবাহুল্যের জন্যই তার প্রার্থনার উত্তর পাবে। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। बक मत करो, हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करो जो लोग बाइबल लेके आओ। बहुत बोलने से लोग सोचता है जितना 1 घंटा बोलेंगे तो प्रार्थना, 2 घंटा बोलेंगे नहीं, 2 ঘন্টা প্রার্থনা करना गलत नहीं है, প্রার্থনা 2 ঘন্টা করা বলেন, কিন্তু যদি আপনার প্রার্থনা ও আমি যদি 1 ঘন্টা 2-5 মিনিট করে এফেক্টিভ না, কিন্তু যদি 1 ঘন্টা যদি বসে যাই তাহলে সেটা শুনবে, এটা নয়। ওকে, তো ঈশ্বর কি বলছে,
বেশি তারা ভাবে কি কপটিরা কি ভাবে যে তারা বেশি কথা বলার জন্য তাদের প্রার্থনা শোনা হবে। कपटी लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादा बकबक करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अब परमेश्वर क्या बोला है? ईश्वर की बोले हिब्रू 11:6 हिब्रू चैप्टर 11:6 इब्रानियों 11:6 লেখা আছে কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি তার সান্নিধ্যে আছে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন, আর যারা আন্তরিকভাবে তার অন্বেষণ করে তিনি তাদের পুরস্কার দেন। लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। তো বিশ্বাস ছাড়া আপনার প্রার্থনার উত্তর কোনোদিনও আসবে না। विश्वास के बिना आपके प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं आएगा। প্রভু যিশু ক্লিয়ারলি, যদি দুটো বাক্যকে আমরা দেখি, প্রভু যিশু ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এই জিনিসটা যে আপনার প্রার্থনা এই জন্য শোনাবে না যে আপনি অনেক অনেক শব্দকে ব্যবহার করছেন। इन दोनों वचन में यीशु ने हमें समझा दिया है कि हमारे प्रार्थना जो है ज़्यादा बोलने के द्वारा नहीं आती है। It's not long prayers but faith in prayer that pleases God. এটা বড় প্রার্থনা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের প্রার্থনা যা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করে। बड़ी प्रार्थना नहीं बल्कि विश्वास की प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं। আপনি 2 ঘন্টা প্রার্থনা করছেন কিন্তু প্রার্থনার মধ্যে কোনো বাক্য নেই, বাক্য অনুযায়ী আপনি প্রার্থনার মধ্যে খালি নেগেটিভ কথা বলছেন। আপনি ভাবছেন আমি 2 ঘন্টা প্রার্থনা হচ্ছে ও ঈশ্বর শুনে নিচ্ছে, ঈশ্বর একটা কথাও শুনেনি। अब 2 घंटा प्रार्थना कर रहे लेकिन उसमें कोई भी वचन नहीं बल्कि हर एक नेगेटिव बातें उसमें हुई है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। মানে বিশ্বাসে আপনার ভূমিকা আছে, একে অপরকে বলুন विश्वास में आपकी भूमिका है। बोलो एक बार, विश्वास में आपका भी भूमिका है, एक दूसरे को बोलो हालेलुया। সো बहुत सारे समय में ওকে অনেক সময় আমরা এটা ভাবি ও আমি প্রার্থনা করার সময় ভাবুন সুস্থতার জন্য, আমি সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছি, ব্যাস এবার ঈশ্বর আমাকে সুস্থ করবে। हम लोग बहुत समय सोचते हैं कि हम एक स्वस्थता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरा सुनेगा। ঈশ্বর বাক্য কি বলে? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ঈশ্বর অলরেডি করে দিয়েছে, परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। বাট আমরা ভাবছি ও ঈশ্বর করবে, ঈশ্বর করবে না, ঈশ্বর করে দিয়েছে। पर हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर करेगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने कर दिया है। आज अनेक বিশ্বাসী ओ प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे शरीर को तू ठीक कर। नो भीख मांग रहे अभी भी, এখনো তারা ভিক্ষা করছে, কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি অলরেডি করে দিয়েছি, আমার হাতে নেই, আমি অলরেডি ক্রুসে ঈশ্বর বলেছিল করে দিয়েছিল, বলেছিল ইট ইজ ফিনিশ, ये खत्म हो गया। ওই দিন ঈশ্বর বাকি সব কার্য করে দিয়ে, আপনার শুরু চমৎকারের দরকার ঈশ্বর করে দিয়েছে, আপনার পয়সার দরকার ঈশ্বর করে দিয়েছে, আপনার সুস্থতার দরকার ঈশ্বর করে দিয়েছে, একবার ঈশ্বর করে দিয়েছে, परमेश्वर ने कर दिया है। तो अब क्या है? आपका रोल है। এবার কি হচ্ছে? আপনার ভূমিকা আছে। কি ভূমিকা আপনার? आपकी क्या भूमिका है? অনেক বলে ও আমার ভূমিকা হচ্ছে প্রার্থনা করা। बहुत से बोलेंगे कि अरे मेरी भूमिका है प्रार्थना करना, না, पर ऐसा नहीं है। আপনার ভূমিকা হচ্ছে যে বিশ্বাসের প্রার্থনা করা। आपकी भूमिका है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। বিশ্বাসের প্রার্থনা আর এই প্রার্থনার ডিফারেন্স কি? विश्वास की प्रार्थना में और ऐसे ही प्रार्थना में अंतर क्या है? प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तू अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा? ঈশ্বর আমার জীবনে কিছু হচ্ছে না, তুমি যদি করবে না তো কে করবে? ये सिंपल प्रार्थना है। এটা বাস একটা সাধারণ প্রার্থনা। परमेश्वर इस प्रार्थना से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। এই প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বর তোমার জীবনে কিছুই করতে পারবে না। বিশ্বাসের প্রার্থনা কি? दूसरा विषय है कि विश्वास की प्रार्थना क्या है? প্রভু আমি চাই দেখতে পাই না দেখতে পাই না আমার চোখের দ্বারা সুস্থতা, তোমার বাক্য বলে তোমার বেত্রাঘাতের দ্বারা আমি সুস্থতা পেয়ে গেছি, ব্যাস আমি এটা বিশ্বাস করি আর আমি সুস্থ হতে শুরু করে দিয়েছি। प्रभु मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, उस क्रूज पर आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो चुका हूँ। আজ বেশিরভাগ বিশ্বাসের প্রার্থনা দয়ার প্রার্থনা। आज बहुत से विश्वासियों का प्रार्थना बस दया की प्रार्थना है। বিশ্বাসের প্রার্থনা তারা করে না। विश्वास की प्रार्थना वो नहीं करते हैं। যা পরিস্থিতি দেখায় সেটা তারা ঈশ্বরকে বলে, জানো ঈশ্বর যেন দেখতেই পাচ্ছে না কিছু, जो परिस्थिति उनके सामने आती है उसी के द्वारा वो प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर देख ही नहीं रहे हैं কিছু उनको। হবে না ওটাতে। वैसे कुछ नहीं होगा। কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে? বিশ্বাসের প্রার্থনা করতে হবে, ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করতে হবে আর বলতে হবে ঈশ্বর তোমার বাক্যে
লেখা আছে, ডাক্তার কি বলছে আমি জানি না, তোমার বাক্যে লেখা আছে, আমি এটা ধরে রেখেছি, এটা আমার জীবনে হবেই হবে। आपको विश्वास की प्रार्थना करनी होगी, आपको बोलना होगा परमेश्वर आपका वचन कहता है, डॉक्टर क्या कहता है मुझसे कोई मतलब नहीं, पर आपका वचन कहता है। যাকব তার 5:15 याकूब 5:15 याकूब 5:15 লেখা আছে বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা। যারা বাংলা বাইবেল ইউজ করছেন আন্ডারলাইন করুন, বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত प्रार्थना। हिंदी में विश्वास की प्रार्थना, हिंदी में लिखा है विश्वास की प्रार्थना, अंडरलाइन करो, विश्वास की प्रार्थना। এই যে বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা, সে অসুস্থ ব্যক্তিকে কি করবে? জোরে বলুন, সুস্থ করবে। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे। তো বুঝতে পারলেন বিশ্বাসের প্রার্থনা আর অবিশ্বাসের প্রার্থনা কি? অবিশ্বাসের প্রার্থনা আপনার পরিস্থিতিকে বলা, আর বিশ্বাসের প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা আপনার কঠিন পরিস্থিতিতে। अविश्वास की प्रार्थना वो है जो आपकी परिस्थिति को बोलना, पर विश्वास की प्रार्थना वो है जो आप वचन के द्वारा बोलते हैं। তো এই বিশ্বাসের প্রার্থনা কোথা থেকে আসবে? ये विश्वास की प्रार्थना कहाँ से आएगी? বিশ্বাসের প্রার্থনা কোথা থেকে আসবে? विश्वास की प्रार्थना कहाँ से आएगी? বিশ্বাসের প্রার্থনা জন্ম নেয়, মনে রাখবেন, কোনো ক্রুশের দিকে তাকানো দ্বারা হয় না। विश्वास की प्रार्थना क्रूस की तरफ देखने से नहीं जन्म लेती है। বিশ্বাসের প্রার্থনা ক্রুশের লকেট ঝোলানোর দ্বারা হয় না। विश्वास की प्रार्थना क्रूस के लॉकेट पहनने से नहीं होता है। বিশ্বাসের প্রার্থনা প্রতিদিন বাইবেলকে ধরে এরকম করার দ্বারা হয় না। अब विश्वास की प्रार्थना हर दिन बाइबल को लेकर प्रणाम करने से नहीं होती है। বিশ্বাসের প্রার্থনা জন্ম কোথা থেকে হয়? যখন বাক্যে যা লেখা আছে যখন সেটাকে আপনি মনন করতে শুরু করেন। विश्वास की प्रार्थना आपके परमेश्वर को वचन के द्वारा होती है, जब उस वचन को आप पढ़ के मनन करना शुरू करते हैं। যখন মনন করতে যখন একটা বাক্যকে আপনি প্রত্যেকবার পড়ে যাচ্ছেন যতক্ষণ না সেটা আপনার হৃদয়ের ভেতরে না ঢুকছে। आप विश्वास की प्रार्थना होती है अगर आप वचन को आप पढ़ते जा रहे जब तक आपके हृदय में वो बोया ना जाए। एक प्रेग्नेंट वुमन को जैसे एक बच्चे में वो क्या होता है, प्रेग्नेंट होता है, राइट? और वो क्या है, जहां पे भी जा रही है उसको क्या है, वो क्या है, तो वो अकेली नहीं जा रही, वो जानते हैं कि मेरे अंदर में एक बच्चा है। যারা একটা প্রেগনেন্ট স্ত্রী, সে যখনই যেখানে যায় বাচ্চা সে হয়তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে জানে তার পেটের মধ্যে, সে একা যাচ্ছে না, তার পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে। ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে, ঈশ্বরের বাক্যতে প্রত্যেক দিন আপনার হৃদয়কে প্রেগনেন্ট করতে হবে। परमेश्वर को वचन से आपके हृदय को प्रेग्नेंट करना होगा। তো কি হয়, একটা সময় আসে যখন বাচ্চা বড় হয়, যখন পেট কাটা হয়, ঠিক আছে, কি হয়, বাচ্চা বেরোয় সেখান থেকে। फिर एक समय आता है जब बच्चा बड़ा होता है और पेट को काट कर उस बच्चे को निकाला जाता है। তেমনি যখন সময় আসে, আপনার জীবনে পরিস্থিতি আসে, আপনার হৃদয় থেকে কি হয়, ঈশ্বরের বাক্য যা আপনার হৃদয়ের ভেতরে বীজ বপন করেছিলেন, সে বীজ পরিপক্ক হয়ে বাইরে আসে। वैसे ही एक समय आता है जब परिस्थिति आपके सामने आती है, तो उस परिस्थिति के अनुसार ही परमेश्वर का वचन आपके हृदय से बाहर आता है। সেটাকে আমরা কি বলি, ঘোষণা করা। और उसी को हम लोग बोलते हैं घोषणा करना। तो वचन जब आप मेडिटेट करते रहोगे, जब परिस्थिति आएगा, वचन का अनुसार सोच आपका मुंह से ऑटोमेटिकली निकलना स्टार्ट हो जाएगा। আর যখন আপনি বাক্যকে মনন করবে, তখন সেই বাক্য সেই চিন্তাধারাই তোমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবে। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जीवन में जब भी मैं शत्रु देखता हूँ, যেইভাবে আমি নিজের জীবনে একটা শত্রুকে দেখি, তো আমার শত্রু দেখে ভয় আসে না, আমার শত্রু দেখে প্রথমে একটা ওয়ার্ড আমার কাছে আসে, तब मुझे शत्रु के द्वारा मुझे डर नहीं लगता है, बल्कि उस समय एक बात मुझे याद आती है। यहोशू तार 1:5 यहोशू उसका 1:5 No one will be able to stand up against you as I was with Moses, I will be with you. কেউ তোমার সারা জীবনে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না, যেমন আমি মোশির সাথে ছিলাম আমি তেমনি তোমার সাথে থাকবো। लिखा है कि उस समय तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैं मसीह के साथ था, वैसे मूसा के साथ था, वैसे ही तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। আমি না কোনোদিন তোমাকে ছাড়িব, না কোনোদিন পরিত্যাগ, और ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही कभी तुम्हें त्याग करूंगा। যদি বিশ্বাসের বাক্যকে যদি আমি প্রত্যেক দিন ওই বাক্যের দ্বারা যদি প্রেগনেন্ট না হই, তাহলে আমি যখন সমস্যা আসবে আমি বলবো এবার আমার কি হবে, প্রভু তুমি কোথায়, তুমি কিছু করো প্রভু। जब तक हम विश्वास के द्वारा उस वचन के द्वारा अपने हृदय को प्रेग्नेंट ना कर ले, तब तक हम परिस्थिति के सामने हम नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ बोलेंगे प्रभु मैं क्या करूं। আর সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ বিশ্বাসের বেলা, প্রভু তু কাহা है, तू कुछ कर। অনেকটা বিশ্বাসী বলে প্রভু তুমি কোথায়, কিছু করো। আর ঈশ্বর বলছে আরে আমি করে দিয়েছি, বাক্যকে পড়ে ঘোষণা করো। तब परमेश्वर कहते कि अरे मैंने कर दिया है, तुम वचन को पढ़ो और घोषणा करो। আরে আমি বলে দিয়েছি, বিশ্বাসের সাথে বলো পাহাড় সরে যাবে।
अरे मैंने तो बोल दिया है कि तुम विश्वास के साथ उस पर्वत से कहो कि पहाड़ तुम हट जाओ तो वो हट কিন্তু जाएगा। আমরা পাহাড় দেখে প্রভু বাঁচাও তুমি, पर उस पहाड़ को देखकर हम बोलते हैं प्रभु आप बचाइए। जब कॉलेज में था ना एक तो लैंग्वेज है बचाओ साधु बाबा, वैसे भी यीशु मसीह भी होगा बचाओ यीशु बाबा। यीशु बाबा बचा दिया है, वो सब कुछ कर दिया है, आपको यीशु बाबा का वचन को पढ़ना है। सिर्फ यीशु बाबा कहने से कुछ नहीं होगा। শুধু যিশু যিশু করলে কিছুই হবে না। जैसे बोला कपटी के तरह एक ही बात को घुमाते बकबक करते मत रहो। बहुत सारे विश्वास है बकबक करते हैं। अब बोलते हैं प्रभु तू जानता नहीं है मेरा जीवन में ना ये प्रॉब्लम है, यहाँ से ये हुआ यहाँ से हुआ है। प्रभु बोला कि ऐसे बोल रहे हैं कि लगे मुझे पता ही नहीं है कुछ भी इसके बारे में। जब आप परमेश्वर को कुछ बोलो याद रखना आप जितना अपना प्रॉब्लम कर रहे हो नहीं जानते उससे ज़्यादा परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, आप इंसान हो। আপনি ভবিষ্যৎ জানেন না, ঈশ্বর জানে। আপনি হয়তো জানেন না অনেক সময় প্রবলেম কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর জানে এক্স্যাক্টলি প্রবলেম কোথা থেকে স্টার্ট। आप नहीं जानते होगे कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है। তো পাহাড়ের ব্যাপারে বলে লাভ নেই, পাহাড় কি ঈশ্বর বলছে বলতে হবে। पहाड़ के विषय में बोलकर कोई लाभ नहीं है, बल्कि पहाड़ को क्या परमेश्वर बोलने के लिए कह रहा है उसको बोलने में लाभ है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো যখন ঈশ্বরের বাক্যকে মনন করবেন, মনন করে যখন হৃদয়ে বাক্য ভরে যাবে আর সে বাক্যের বিশ্বাসের সাথে যখন মুখ থেকে বেরোবে, মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে বিশ্বাসের প্রার্থনা। जब आप परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरेंगे और जब वो वचन आपके हृदय से निकलेगा, वही है विश्वास की प्रार्थना। कोई गोली नहीं मिलता दुकान में, কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না বিশ্বাসের প্রার্থনার জন্য। একটাই ওষুধ, ঈশ্বরের বাক্যকে রোজ মনন করতে হবে। एक ही दवा है कि परमेश्वर के वचन को हर दिन आपको मनन करना होगा। যত সময় মননে দেবেন তত আপনার হৃদয় বিশ্বাস বাড়বে। जितना समय आप मनन करने में देंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। বিশ্বাস প্রার্থনার দ্বারা বাড়বে না কোনোদিনও। विश्वास प्रार्थना के द्वारा कभी भी नहीं बढ़ेगा। বাইবেল লেখা আছে ফেথ কামস বাই হিয়ারিং, হিয়ারিং দ্য ওয়ার্ড অফ গড। ঈশ্বরের বিশ্বাস শোনার দ্বারা, শোনা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা। वचन कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो सिर्फ वचन जब सुनोगे, जब यहाँ पे आ रहे हो और सोने के सोच लेके आ रहे हो तो कुछ नहीं होगा। पर जब यहाँ पे आओगे सुनने का हृदय से, हाँ मुझे सुनना है, और घर में जाके मनन करोगे तो विश्वास बढ़ते रहेगा आपके जीवन में। যখন আপনি আসবে আর বাক্যকে শুনবে আর তাকে বাড়িতে গিয়ে মনন করবে, তখনই বিশ্বাস আপনাদের জীবনে আসবে। विश्वास बहुत बढ़िया होता है বিশ্বাস অনেকই ভালো হয়। और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ওই জায়গায় আছে যেখানে দ্বারা আমরা শুরু করি। কিন্তু ঈশ্বরের সামর্থ্য বের হয় মনে হবে আপনার শব্দের দ্বারা, যে আপনার মুখ থেকে বেরোচ্ছে। पर परमेश्वर का सामर्थ आपके मुंह से जो निकलता है उसके द्वारा होता है। প্রথম যোহন তার 1 অধ্যায়ের 5 পদ খুলতে হবে না, এটা জাস্ট জানেন। প্রথম যোহন 1 অধ্যায়ে যারা ডায়েরিতে লিখে রাখবেন, সেখানে লেখা আছে ঈশ্বর জ্যোতি আর তার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। हाँ, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी, तो परमेश्वर क्या है? ज्योति, ঈশ্বর কি? জ্যোতি। কিন্তু যদি দেখেন যখন জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল, আদি পুস্তক 1 অধ্যায় 2 থেকে 3 পদকে যদি দেখেন, 3 পদ যদি দেখেন লেখা আছে আর ঈশ্বর বললেন আলো হোক এবং আলো হলো। जब जगत की सृष्टि हुई, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 3 पद में अगर देखें तो परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो, तो वहाँ पर उजाला हो गया। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল ঈশ্বর তো জ্যোতি, ঈশ্বর ছিল তো জ্যোতি তো আপনা आप হয়ে যেত। पर विषय है कि परमेश्वर तो खुद ज्योति है, अगर परमेश्वर वहाँ थे तो ज्योति अचानक ही हो जाती। কিন্তু বাক্য বলে ঈশ্বর বললো তো জ্যোতি হলো। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने बोला तभी उजाला हुआ। ঈশ্বরের ভেতরে যেটা ছিল যখন ঈশ্বর বললো সেটা ফিজিক্যালি ম্যানিফেস্ট হলো। जब परमेश्वर के अंदर जो था, जब उन्होंने बोला तो वो शारीरिक रीति से वो बाहर भी दिखा। তো সুস্থতা ঈশ্বর আপনার আত্মায় দিয়েছে। যখন আপনি বিশ্বাসের সাথে বলবেন তো আপনার জীবনে কার্য হবে। चंगाई आपके अंदर परमेश्वर ने दे दिया है, लेकिन जब आप विश्वास के साथ बोलेंगे तो वो होगा। পাহাড় হাঁটানোর সামর্থ্য ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। যখন বিশ্বাসের সাথে পাহাড়কে বলবেন পাহাড় সরবে। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर ने हमें दे दिया है, लेकिन हम अगर विश्वास के साथ बोलेंगे तब वो पहाड़ हटेगा। हालेलुया। हालेलुया। নোরওয়েল হেজ বলকে এক পাস্টার ছিল, ঠিক আছে। আর সে একটা জায়গায় প্রেয়ার মিটিং নিতে যায়। वो जो पास्टर थे वो एक जगह पे प्रेयर मीटिंग लेने जा रहे थे। আর সেইখানকার একজন পাস্টার একজন বিশ্বাসী ব্যাপারে বলে যে একজন বিশ্বাসী তার হাজবেন্ড
থার্ড স্টেজ ক্যান্সারের মধ্যে আছে। और वहाँ पर जब वो पास्टर जाते हैं तो एक विश्वासी उनसे बोलता है कि उस विश्वासी का जो हस्बैंड है वो तीसरे स्तर पर है कैंसर में। और পাস্টার নোবেল इसको বলে যে কাইন্ডলি আপনি চলুন আমাদের সাথে আর ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করুন তার জন্য। तब वो विश्वासी उस पास्टर को बोलता है कि आप हमारे साथ चले और उसके लिए प्रार्थना करें। তো পাস্টার যায় সেখানে, तो वहाँ पर वो पास्टर जाते हैं সে হসপিটালে বেডের মধ্যে সে প্রার্থনা করে। और वो हॉस्पिटल के बेड पर ही उनके लिए प्रार्थना करते हैं। তার হাজবেন্ড পুরো আনকনশিয়াস ছিল সেখানে, वहाँ पर उनके जो हस्बैंड है उनकी परिस्थिति सही नहीं थी, অজ্ঞান হয়েছিল। তো প্রার্থনা করে যখন সে পাস্টার যখন বেরিয়ে আসতে থাকে, ঈশ্বর তার হৃদয়ের মধ্যে একটা কথাকে রাখে। तब जब वो पास्टर वहाँ पे प्रार्थना करके जब वो बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर उनके हृदय में एक बात को रखते हैं। পাস্টার মানে ঈশ্বর তাকে বলে যাও আর তার স্ত্রীর সাথে কথা বলো। और वो उनसे ये बातें करते कि तुम जाओ और उसकी स्त्री के साथ आप बात करो। সে ঘুরে আবার তার স্ত্রীর কাছে যায়, तब वो उसकी पत्नी के पास वो जाते हैं আর তার স্ত্রীকে বলে ঈশ্বর আমাকে বললো মার্ক তার 11:23 তুমি প্রত্যেক দিন তোমার স্বামীর সামনে পড়তে থাকো। तब वो पास्टर जाकर उनको बोलते हैं कि मार्क 11:23 को वो जाकर हर दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा वो घोषणा करे। কি লেখা আছে 11:23 পাহাড়কে যদি বলো সরে যেতে পাহাড় সরে যাবে। তো সে কি করলো, তার স্ত্রী প্রত্যেক দিন ঘোষণা করতে শুরু করলো। সে বাইবেলকে জোরে জোরে তার কানের সামনে মানে বসে সে তার সামনে পড়তে শুরু করলো। तब वो उस वचन को उसकी पत्नी ने उनके कानों के सामने घोषणा करना शुरू करती है। আর যখন সে বলতে থাকলো প্রত্যেক দিন সে যখন বলছে তার ভেতরে কি হচ্ছে, ঈশ্বর বাক্য বলছে বিশ্বাস কোথা থেকে আসে, ঈশ্বরের বাক্যে আসে। যখন বলতে শুরু করলো তার স্বামী তো শুনতে পাচ্ছে না, মানে স্বামী তো আনকনশিয়াস আছে, কিন্তু তার ভেতরে বিশ্বাস বাড়তে শুরু করলো। लेकिन जब वो ये बोलना शुरू करती है तो उनके अंदर में ये विश्वास होना शुरू होता है। আর যখন সে বিশ্বাসে সে বলতে শুরু করলো আমার স্বামী মরবে না, আমার স্বামী বাঁচবে। तब वो बोलना शुरू करती है कि मेरा जो पति वो मरेगा नहीं, वो जीवित होगा। থার্ড স্টেজ ক্যান্সার আমি তোকে আদেশ দিয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে যা। ये तीसरा स्तर का जो कैंसर है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम यहाँ से निकल এই जाओ। ক্যান্সার আমার স্বামীকে শেষ করতে পারবে না, এই ক্যান্সার প্রভু যিশুর নামে শুকিয়ে যাবে। ये जो कैंसर है मेरे पति को नहीं मार सकता है, बल्कि परमेश्वर के नाम से ये जो कैंसर है वो वहीं पे सूख जाए। 3 সাল বাদ 3 বছর পর ওকে হ্যাঁ 3 বছর পর ঠিক আছে পাস্টার নোবেল হে আবার সেই জায়গায় এসেছিল সে মিটিং নিতে। वो पास्टर वापस से उस जगह पे आए मीटिंग लेने के लिए। আর একজন পাস্টার যে ওখানকার চার্চে পাস্টার সে বলল পাস্টার ওই যে মানুষটা যে গিটার বাজে তাকে দেখতে পাচ্ছেন? तब एक विश्वासी उनके पास जाकर बोला कि वो जो विश्वासी वहाँ पे खड़ा है आप उसे देख पा रहे हैं? जो विश्वासी गिटार बजा रहा है। जो विश्वासी गिटार बजा रहा है। बोला हाँ। आपको याद है जिस विश्वासी को आप हॉस्पिटल में जाके दुआ किए थे, आज वो विश्वासी जिंदा होके गिटार बजाए। हालेलुया हालेलुया। तो वो चौके बोले यही था, क्योंकि ऑब्वियसली जब अनकॉन्शियस था मरने का डॉक्टर बोल देता अब 2-3 दिन का मालिक है भैया जी, तो उसका तो हालत वैसे रहेगा। अभी ठीक होके आराम से वो गिटार बजा। तो वो पास्टर क्या किया, पास्टर की করলো সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীর কাছে দৌড়ে গেল। तब वो पास्टर उसकी पत्नी के पास पास्टर तुरंत उसके गए। पत्नी नहीं, मतलब जो इंसान जो विश्वासी थे उनके पत्नी के पास वो गए। হ্যাঁ। তো তাকে বললো যে আপনি কি করেছিলেন? तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया था? ও বললো পাস্টার আপনি যা বলেছিলেন তাই করেছিলাম। तब उन्होंने कहा कि पास्टर आप जो बोले थे मैंने वही किया। ও আপনি বাক্যকে ঘোষণা করেছিলেন। ওকে যখন আপনি বাক্যকে ঘোষণা করছিলেন আপনার কোনো কিছু ফিল হচ্ছিল? तब उन्होंने कहा कि वो आप परमेश्वर के वचन को घोषणा कर रहे थे, जब आप घोषणा कर रहे थे तो क्या आपको कुछ महसूस हुआ? बोले कुछ नहीं हो रहा था, কিছু হচ্ছিল না। तब उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा था। কিন্তু আমি আপনি বলেছিলেন আমি সেই বাইবেলের পথকে বলতে শুরু করেছিলাম। पर आपने बोला था कि उस वचन को पढ़ने तो मैं उसे बोलना शुरू कर रही थी और शुरू कर रही थी। আর ঘোষণা করতে করতে আমি বাক্যের অনুযায়ী বলতে শুরু করে দিয়েছিলাম। और घोषणा करते करते मैं उस वचन के अनुसार ही बोलना शुरू कर दी थी। আর হঠাৎ ডাক্তার বলছে 4 দিন পর মারা যাবে, 5 দিন হয়ে যায়, 10 দিন হয়ে যায়, 1 মাস হয়ে যায়, আস্তে তার শরীর ঠিক হতে শুরু করে। पर जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि 4 दिन बाद मर जाएगा, लेकिन वो 5 दिन 6 दिन फिर महीने भर वो जीवित रहा। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ महीने बाद जीवित नहीं, महीने बाद तो ठीक होने लगा, अभी तो जीवित ही है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिलता है, पास्टर को सीखने को मिला, जो हमको भी सीखने को मिला, आपको भी सीखना चाहिए। क्या है कि অনেক সময় যখন আমরা বাক্যকে ঘোষণা করি জরুরি নয় ঈশ্বর যখন কার্য করবে আপনি অনুভূতি করতে পারবেন। अब जरूरी नहीं है कि आप जब परमेश्वर का वचन को घोषणा कर रहे हैं तो उसके बाद आपको अनुभूति होगा उस चीज़ का, अरे कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं लग सकता है, कभी लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बट आपको वचन को
घोषणा करते जाना है जब तक आप उस रिजल्ट को नहीं देख लेते हो। हालेलुया। অনেক যে ভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি মানে যখন গুসবাম্স দেয় তো সেটা ঈশ্বরের উপস্থিতি। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति है। एक बात बताए, हंसोगे नहीं ना, हंस सकते हो। बहुत सारे ये लोग बोलते हैं हाँ परमेश्वर की उपस्थिति में रोना आ सकता है, गुसबम्स हो सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, ठीक है, बट ये चिन्ह नहीं है कि गुसबम्स होने से ही परमेश्वर है, ठीक है, या रोने से ही परमेश्वर। कल हो ना हो, देखो देख के मैंने बहुत रोया था अपने बचपन में, बट वो परमेश्वर ना, आज भी बहुत सारे मूवी देखा भी ना, कोई एक मूवी में निकला है सब कोई पागल के तरह कर रहा है, तो क्या परमेश्वर है वहां पे? तो रोना नहीं दिखाता है परमेश्वर है। बहुत सारे समय में आप फील नहीं कर पाओगे, बट वचन जो बोलते हैं, परमेश्वर इमोशंस में नहीं चलता, परमेश्वर का वचन से चलता है। ঈশ্বর কোনো অনুভূতির দ্বারা চলে না, ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা চলে। সেই স্ত্রী কিছু অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু সে বলে গেছিল, কার্য তার জীবনে হয়েছিল। वो महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो जब विश्वास करती रही तो अपने आप ही वो बढ़ती गई। कल एक लड़का से मेरा बात हो रहा था, वो बोले पास भैया अब अच्छा नहीं लग रहा है बाइबल पढ़ना। ओके, बाइबल पढ़ा ভাল লাগে না, ঠিক है। আমি বললাম अगर ভাল লাগে না तो অনুভূতির ওপর, তোমার ভাল লাগে না ওপর কিছু नहीं, यदि अगर निजे जीवन को अगर सही करना है तो वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन को घोषणा करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, और वचन को आपको घोषणा करना पड़ेगा, तभी पार हिलेगा। যদি পাহাড়কে আপনাকে সরাতে হয়, ঈশ্বরের বাক্যকে আপনাকে পড়তে হবে, জানতে হবে আর ঘোষণা করতে হবে। अगर पहाड़ को आपको हटाना है तो परमेश्वर के वचन को जानना होगा, पढ़ना होगा और उसको घोषणा करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। অনেক ব্যক্তি আছে তারা আর্থিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করে। बहुत से व्यक्ति है जो आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। তারা সব সময় যখনই প্রার্থনা বলে, ঈশ্বর তুমি আমাকে দাও, ঈশ্বর তুমি আমাকে দাও, ঈশ্বর আমার জন্য এরকম হোক, আমার জন্য এরকম হোক। वो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप दीजिए, ऐसा मेरे जीवन में हो, ऐसा मेरा जीवन में। কিন্তু প্রার্থনা রুম থেকে বাইরে বেরোনোর পর, पर प्रार्थना के उस रूम से बाहर निकलने के बाद, আমার কাছে এটা নেই, আমার কাছে ওটা নেই, এ আমার জীবন কি করে চলবে, আমার জীবন এরকম হয়ে কি করে হবে, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, बस ऐसे ही कहता है। আপনি আর্থিক উন্নতির প্রার্থনা করছেন, কিন্তু আপনার মুখে সবসময় আপনার কাছে অভাবের কথা বলছেন, কোনোদিন আপনার জীবনে উন্নতি আসবে না। आप उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपके मुख से जो अभाव की बातें निकल रही है, तो आपके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं आएगी। কেন জানেন? क्यों पता है? মার্ক 11:23 আছে। मरकुस 11:23। ও কে লেখা আছে? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি এই পর্বতটিকে, কি লেখা আছে? লেখা আছে কি প্রার্থনা করে, কে লেখা আছে? क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला पहाड़ से क्या करना है? कहे। তো কিন্তু বিশ্বাসীরা বেশিরভাগ তারা প্রার্থনা করার সময় আলাদা মুডে থাকে, প্রার্থনা হয়ে গেল তারপর তারা সব সময় সমস্যার ব্যাপারে, আরে মেরা সমস্যা কোনোদিন যাবে না, আরে আমার লাইফে কোনোদিনও কিছু ঠিক হবে না, কোনোদিনও হবে না, কারণ আপনি সেটাই বলছেন। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बाद वही अभाव के विषय में वो बोलते हैं। बहुत सारे অনেকজনের প্রার্থনা করার সময় তার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায়, দেখেছেন? अब बहुत से लोग ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के समय उनका जो आवाज है वो बदल जाती है। हालेलुया हालेलुया स्तोत्र প্রভু যিশু, আচ্ছা এই সময় তোমার কাছে আসছে, গলা আওয়াজ চেঞ্জ হয়। ঈশ্বর এই প্রার্থনা শুনছে না, গলা মোটা করলে ঈশ্বর শুনতে পায় এরকম কিছু নয়। गले की आवाज बढ़ाने से परमेश्वर सुन पाएंगे ऐसा नहीं है। ঈশ্বর শুনছে আপনি 24 ঘন্টা কি বলছেন, पर परमेश्वर वो सुनते हैं जो आप 24 घंटे में बोलते हैं। আর যখন বলছেন আর যখন আপনি পজিটিভ কথা বলবেন তো প্রার্থনাও পজিটিভ কথাই আপনি বলবেন। लेकिन जब आप बोलते हैं और अगर आप सकारात्मक बातों को बोलते हैं तो सकारात्मक रीति से ही आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। तो परमेश्वर ये नहीं बोला रोबोट के जैसा प्रार्थना करो तो सुनेगा परमेश्वर। ঈশ্বর এটা বলেনি কি রোবটের মতন যখন তুমি প্রার্থনা করবে তখনই আমি শুনবো। ঈশ্বর বলছে ঈশ্বরের বাক্যকে ভেতরে ঢোকাও, অটোমেটিকলি পজিটিভ কথা বেরোতে শুরু করবে, আর যখন পজিটিভ কথা ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী বেরোতে শুরু করবে, ঈশ্বর কার্য অলরেডি করে দিচ্ছে তারা দেখতে শুরু করে দেবে। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप पॉजिटिव रीति से जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर स्वयं ही सुनेंगे, उसे करेंगे भी। करेंगे नहीं, परमेश्वर कर दिया वो देख पाओगे आप। हालेलुया। তো বুঝতে পারলেন কি আমাদের প্রার্থনার বলার ওপর জোর দিতে হবে, বলা কিসের? বাক্যের অনুযায়ী।
हमें प्रार्थना में बोलने के अनुसार ही बल देना होगा कि वो भी बोलना किससे, परमेश्वर के वचन के अनुसार। याद रखना आपका एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आपका ना एटीट्यूड चेंज हुआ खूब दरकार, ठीक है। और ये एटीट्यूड कहाँ से होगा? सिर्फ वचन से द्वारा होगा, ঠিক আছে। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা একমাত্র হতে পারে। আজ অনেক মানুষ আছেন প্রার্থনা করতে, পাস্টার প্রার্থনা করে দিন আমার সন্তান খুব চঞ্চল। आज बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि पास्टर प्रार्थना कर दीजिए, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है। কারণ আপনারা শিখে এসছেন, অন্য জায়গায় অনেক পাস্টারকে আপনি হয়তো পাস্টার বলছে हाँ हाँ ठीक है प्रार्थना कर दे रहा, हालेलुया हालेलुया, घंटा होगा। याद रखना प्रार्थना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको अलग नहीं करता है। প্রার্থনা আপনার দায়িত্ব থেকে আপনাকে আলাদা করছে না। আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে চান যে আপনার বাচ্চা যেন সঠিক জায়গায় যায়, তার জন্য আপনাকে ছোটবেলা থেকে আপনার বাক্যকে তার জীবনে ঢোকাতে হবে। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े होकर अच्छी जगह पे जाए तो आपको छोटे से ही उसको परमेश्वर को वचन के विषय में सिखाना होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते আরে আমি আমার জীবনে যা ইচ্ছা চালাবো, আমি কোনোদিনও প্রার্থনা করব না। অনেকজন এরকম বলে কি আমি নিজের জীবনে যা ইচ্ছা তাই করব আর আমি বাক্যর দ্বারা আমি চলবো আমি আমার না। বাচ্চাকে ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাপারে কোনো কিছু দেখাবো না। मैं अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं मैं दिखाने वाला न আমি चलाने আমার वाला। বাচ্চাকে জগতের সব জিনিসের ব্যাপারে বলে দেবো, সব শিখিয়ে দেবো, কিন্তু চার্চের ব্যাপারে ইম্পর্টেন্স কোনোদিনও বোঝাবো না। मैं अपने बच्चे को जगत के हर एक विषय के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन और चर्च के विषय में नहीं सिखाऊंगा। আমার বাচ্চা বলে সব কিছু করার পর যদি সময় থাকে তবে চার্চে আসো, চার্চ পরে হবে, এখন হওয়ার দরকার নেই। और उसको यही कहूंगा कि सब कुछ करने के बाद ही वो चर्च में आएगा, लेकिन चर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। আর তারপরে আমরা এক্সপেক্ট করবো যে আমার বাচ্চা 15 বছর 16 বছর বয়সে চার্চে আপনি আপনি চলে আসবে। और उसके बाद भी हम सोचेंगे कि 15 और 16 साल के बाद मेरा बच्चा अपने आप ही चर्च में আপনি आएगा। এই বীজকে বপন করেছেন যে চার্চ ইম্পর্টেন্ট না, আর আপনি এখন এক্সপেক্ট করছেন সে যেন চার্চে প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। आपने उसी बीज को बोया है कि चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है और वही चीज को मान रहे हैं कि वो आएगा। वाह। और उसके बाद आप क्या कर दो? पास्टर प्रार्थना कर दो। प्रार्थना झाड़ फूक नहीं है ना, झाड़ दो, या कोई दवाई नहीं है पिला दो अनकॉन्शियस कर दो, उसके बाद जो मर्जी उसको करवाते जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ঈশ্বরের বাক্যকে প্রথম থেকে আপনার বাচ্চার উপর দিতে হবে, আর যখন দেবেন আস্তে আস্তে তার ফলকে আজ দেখতে পাবেন, আর যা বপন করছেন তার ফলকে 15 বছর পর আপনার বাচ্চার জীবনে দেখতে পাবেন। आपको परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में अपने बच्चे को उस छोटे से समय से ही देना है, ताकि आप उसके बाद आप समय पर उसके फल को देख पाएं। हालेलुया। हालेलुया। যেমন আজ যদি আপনি বাক্যকে করতে শুরু করেন, আজ থেকে ফল আসবেন আপনার জীবনে, কিন্তু যখন করতে শুরু করবেন একটা টাইমে কি হবে? আপনার হৃদয় বাক্যের অনুযায়ী ভাবতে শুরু করবে। आप जब आज से परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे तो आज ही नहीं आपके जीवन में फल आएगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसको मनन करना शुरू करेंगे, तो एक समय में आप उसके फल को देख पाएंगे। একটা সময় আসবে আপনি বাক্য অনুযায়ী ভাবতে শুরু করবেন, और एक समय आएगा कि आप वचन के अनुसार ही सोचना शुरू তখনও करेंगे। ফল দেখবেন না। বাক্য অনুযায়ী ভাবতে শুরু করবেন, তারপর একটা সময় যখন ভাবতে শুরু করবেন আপনি বলতে শুরু করবেন সেই और जब आप অনুযায়ী। सोचना शुरू करेंगे तभी आप बोलना शुरू আর करेंगे। যখন বলতে শুরু করবেন তখন আপনার জীবনে কার্য হতে শুরু হবে। और जब आप बोलना शुरू करेंगे तभी आपके जीवन में कार्य भी होना शुरू हो जाएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। তোমরা ভাবেন প্রার্থনা, বিশ্বাসের প্রার্থনা, ঠিক আছে, নেগেটিভ জিনিস থেকে শুরু হয় না। तो विश्वास की प्रार्थना गलत बातों से शुरू नहीं होती, नकारात्मक बातों से शुरू नहीं होती है। বিশ্বাসের প্রার্থনা আপনার পরিস্থিতি আপনাকে যা দেখাচ্ছে সেই অনুযায়ী শুরু হয় না। विश्वास की प्रार्थना आपकी परिस्थिति आपको क्या दिखा रही है उसके द्वारा शुरू नहीं होता है। বিশ্বাসের প্রার্থনা শুরু হয় ঈশ্বরের বাক্য থেকে। विश्वास की प्रार्थना शुरू होती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। হালেলুয়া। যেমন আমি যদি আজ আপনি পরিস্থিতি দেখেন, আজ আমি বিশ্বাসের সাথে কি বলছি যে আজ চার্চ একটা টাইমে আসবে যেখানে চার্চে মৃত জীবিত হবে, চার্চ একটা টাইমে ব্লেসিং হবে আলাদা চার্চের জন্য, ঠিক আছে। এটা পরিস্থিতি এখন এমন কিছু নেই এরকম অনুযায়ী, কিন্তু আমি জানি ঈশ্বরের বাক্য বলে আমি বাক্যকে ধরে রেখেছি। আমেন, হালেলুয়া। আর তখন আপনার জীবনে কার্য হবে। কারণ আমি প্রত্যেক দিন মনে রাখবেন আমার প্রার্থনা যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন পাস্টার আপনি প্রার্থনা কি করে করেন, আমি প্রার্থনায় উল্টো পাল্টা কোনো বকবক করি না। আমি প্রার্থনা একটা বাইবেল ধরি, বাক্যকে ধরি, বাক্যকে ঘোষণা করে সেটাই বলি, আর সেই অনুযায়ী কথাকে বলি। আমি যদি আমার জীবনে পাহাড় আছে আমি এটা বলি না আরে পাহাড়ের ব্যাপারে ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বর আমার পাহাড়কে খুব ভালোভাবে জানে, আমি পাহাড়ের ব্যাপারে এক্সট্রা কথা বলতে চাই না। পাহাড়কে বড় করা আমার কাজ নয়। আমি সোজা করে ঈশ্বরের বাক্যকে বাইবেল করে দিলে সেই পাহাড়কে নাম নিয়ে আমি ঘোষণা করতে শুরু করি। পাহাড় যা করা করে নে, সরতেই হবে। हारा है वह तो तुझे हारना ही पड़ेगा, तुझे वैनिश। समुंदर में कुछ गए, टाइटैनिक गिरा था, ढूंढने में नहीं आया, ठीक है, वो बहुत अंदर है। वैसे प्रॉब्लम ऐसे पानी के अंदर जाएगा जो उसका कोई चिन्ह नहीं रहेगा आपके जीवन में।
कब होगा? जब आप वचन के द्वारा बोलेंगे। एक कर कब होगा? जब विश्वास का प्रार्थना आप करोगे। प्रार्थना नहीं, विश्वास का। आज बहुत सारे मसीह में प्रार्थना चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट विश्वास का प्रार्थना जो कर रहा है कार्य 100% होगा ही होगा। हालेलुया। ओके, आप एक बेटी को देख पा रहे हो इधर पे, थोड़ा सा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। पहचान आ रहा है? पहचान पा रहे हो कोई? आज ये बाकी 2 दिन में अलग रूप देखे थे, आज वो संपूर्ण चंगाई होके आ गए यीशु मसीह के सामने। ये यीशु करता है। हालेलुया। जिया को लेके हर एक जगह में लेके गए, नो, हर एक जगह में कहाँ लेके गए थे? मज़ार हो, ठीक है, मंदिर हो, ओझा हो, सब ने क्या बोला था? भाई इसको लेके जाओ, और लोग ना, और दुष्टात्मा एक नहीं और भर के इसके बाद आएगा। आज देखो ये टोटली चंगी होके आपके सामने खड़ी हुई है। हालेलुया। क्या है? विश्वास, जो पहाड़ को, जितना भी ढीठ पहाड़ है ना, उसको हटा देगा। और आपके जीवन में विश्वास है तो। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, मैं आपको ये चीज़ भी सिखाना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैंने प्रार्थना करी इसलिए चंगा हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत सीख रहे हो, अच्छा, बढ़िया है। यीशु ने चंगा नहीं किया। यीशु ऑलरेडी, हमेशा ये तो नहीं, यीशु अब कुछ नहीं कर रहा है, ये चीज़ अपने माइंड में रख लो। यीशु बोले एक दूसरे के, यीशु कुछ नहीं कर रहा है, वो कर दिया जो करना था। अब वो सामर्थ किसके ऊपर दिया है? कौन बोला? पास्टर के ऊपर, हम लोगों के ऊपर वो सामर्थ दिया है। तो कोई अगर बोले पास्टर क्या कुछ नहीं, हमसे वचन का, मैं बोला कि एक ही वचन पकड़ के ढीठ, वो जब नहीं जाऊंगी, हमें बोला पेशवा कि हम यही वचन बोलते रहेंगे जब तक नहीं जाएगी। बोलते रहे, पहाड़ को बोल हट जाने के लिए। प्रभु तूने कहा है मार्क 16, 17, 18 कि जो तुझ पे विश्वास करेगा उसके पीछे ये चिन्ह जाएगा। यीशु तेरे नाम से वो दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे? भगाएंगे, निकालेंगे। भगाएंगे मतलब क्या है? डर के वो क्या करेगा? भागेगा। मेरा सिर्फ एक काम था, मैं वचन को, वो बोला नहीं जाऊंगा, तू मत जा, हम भी अपना वचन को पकड़ के रखेंगे, देखते कौन जीतता है। मैं जानता हूं परमेश्वर जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज मैं करने वाला हूं, ठीक है? ओके, আর একটা জিনিস যেটা আমি, ঠিক আছে, যেটা আমি পরবর্তীকালে দেবো, ঠিক আছে? অনেকজন সুস্থতার ভার্সকে পেয়েছিলেন, পদকে আমরা লিখে দিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? আর আপনারা অনেকজন পদকে ঘোষণা করে আপনি আপনার জীবনের চমৎকারকে পেয়েছিলেন। बहुत से लोगों को चंगाई के उस वचन को दे दिया गया था, जिन्होंने, बहुत से लोग उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उससे घोषणा की और बहुत से लोग चंगे भी हुए। हम लोग एक पेज में पूरा लिख के जेरोक्स करके सबको हम लोग बांट दिए थे। बट अब क्या चीज़ हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ? पे बहुत सारे विश्वासी पास वर्सेस तो है, बस प्रार्थना कैसे करना है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का ये चीज़ हुआ है। कुछ लोग जो जानते थे वो लोग किए, बट बहुत सारे लोगों का ये चीज़ होता है, चलो वर्सेस तो मिल गया, आप इसके बाद क्या करें? तो हम लोग मैं एक चीज़ बना रहा हूँ हर एक चीज़ों के लिए, विश्व माने पहाड़ के लिए, कैंसर के लिए, रोग के लिए, दुष्टात्मा के लिए, आर्थिक आशीष के लिए। हम सिर्फ अब मैं पद में नहीं दूंगा, पद के साथ, मैं उस पद के साथ सोच क्या होना चाहिए वो चीज़ भी मैं आपको लिख के दूंगा। वो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों में दे दूंगा, ठीक है? और उसके बाद करना, आप देखो मैं जो कर सकता हूँ, आप घर में बैठे रहोगे, बोलोगे मैं नेटफ्लिक्स चलाऊंगा और हो जाएगा, नहीं होगा, आपको खटना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता है आज जवानों के बीच में, प्रॉब्लम पता है जो जवानों के बीच में, आज जवानों ज्यादातर कहाँ पे टाइम दे रहे हैं? आज फोन मत बोलो, थोड़ा स्पेसिफिक हो। इंस्टाग्राम में आधा लोग के एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, पर हर कोई टिकटॉक में हीरोइन बन के इंस्टा में और उसके बाद क्या बोलते हो? टाइम नहीं है पास्टर, टाइम नहीं है, वचन पढ़ने का टाइम नहीं है। बट क्या कर रहे हैं? ना एक्टर बनना है, ना टाइम पास कर रहे। और टाइम पास करने के लिए टाइम है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, ऐसे करने के लिए टाइम है।
पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ठीक है। पर हम पास्टर मेरे बारे में बोल रहे हैं कि हाँ आपके बारे में बोल रहे हैं, आपसे हाइड करके स्टेटस लगाएंगे। कोई फायदा नहीं मुझे हाइड करके, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ पता है क्या है, ये इंस्टाग्राम गलत हो सकता है, इंस्टाग्राम को सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर आपको एक्टर बनना है, प्रेज गॉड, आप करो। नहीं बनना है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो वो जो टाइम करके करो ना, उस समय अगर वचन पढ़ लोगे ना, जीवन ठीक हो जाएगा। वो करने के बाद डिप्रेशन में जा रहे हो, मेरा जीवन में कुछ नहीं होता, ये मुझे छोड़ के चला गया, थैंक गॉड छोड़ के चला गया, नहीं तो आपके साथ और डिप्रेस हो जाता वो करने के चक्कर में अगर वचन को पढ़ लोगे तो जीवन भर ठीक हो जाएगा आपका। समय इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर वचन का समय को वाइजली, ठीक है, बुद्धिमान के तरह समय को इस्तेमाल करो। देख खुद भी कर रहे हो, दूसरे के भी देखते जा रहे हो, और सोच रहे हो उसके बाद देखने के बाद वचन पढ़ोगे और वचन से प्रकाश ना मिलेगा। कहाँ से प्रकाश? क्योंकि वचन पढ़ोगे तो ही तो हर जगह में भरा हुआ है ना, तो ही आएगा आपके जीवन में। वही जगह में क्या है, बाइबल को पढ़ो, गाने को सुनो, परमेश्वर गाने को सुनो, वचन का पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन का प्रचार को सुनो, ताकि हृदय में वचन, हालेलुया।